Good morning, everyone. Welcome to this workshop. This workshop is on CLO3D and it helps us to become digital fashion design. But wait, ये होता क्या है? CLO3D है क्या? या बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जैसे एक और सॉफ्टवेयर हो गया, कोल ड्रॉ, एडोब इलस्ट्रेटर या ग्राफिक डिजाइन की तरह, अब हमें CLO3D क्यों चाहिए? We're going to discuss that in the workshop. और मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि CLO3D है क्या, क्यों चाहिए और क्या करता है, या एटलीस्ट कहां से आया है. सो इंटरेस्टिंग थिंग इज, जब तक हम किसी चीज के बारे में जानते नहीं है तब तक हमें उसे सीखने की भी इच्छा नहीं होती है. We don't want to learn it because we do not know it. The more and more we learn about it, the more and more we want to learn, understand. That's how it goes. So, hi, I am Rikhil Nagpal and I am teaching from for last 17 years now. और ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, it started with fashion design and across that it went to graphic design, then learning digital softwares, 3D softwares I would say. और मैं जो CLO3D इसके बारे में जब से सीख रहा हूँ, it's almost about a decade now, because around 2012 I started working with Marvelous Design. Back then it was an interesting option but not so intuitive that it is today. पहले आसान था लेकिन वैसे ही रिजल्ट्स भी उस पे मिलते थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स वहां नहीं मिलते थे. That's how it started. Right? चलिए आगे चलते हैं. Let's understand CLO3D so that we can get to know it better. Okay, let's talk about history and context of CLO3D. CLO3D again, it's kind of a project started in college, just an experimentation thing. This Mr. Jaden O, he was a PhD student in around 2002 to 2007. He did his graduation in 2000 and then master's in computer engineering in 2002. And he was doing his PhD around that period. And around that period, he wanted to understand the property of fabric and how they can actually simulate it on computer. So it was एक बेसिक प्रोजेक्ट जो होता है ना कि चलो कुछ ट्राई करते हैं. हम जो प्रोजेक्ट थीसिस कर रहे हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए he designed a program. बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम था and he was teaching along with that time. You know, he gave it to his students. He go and practice on that. You know what happened? Interestingly, people liked it. Students experimented, and so he thought, why not make it public? So that's how it came in being in 2009. 2009, Marvelous Designer was officially launched. And interestingly, cosplay artists started working on it. You know, it developed a community of approximately 2 million in a very small time. That's how intuitive this software is. So, the founder of CLO Virtual Fashion, or I would say inventor of this software, Mr. Jaden Wu, is not only working along, he was founder and CEO and CTO as well till 2018. Then Mr. Simon O joined as CEO, right? But that journey from 2009 to 2022, it was an interesting thing. You know, with time, they understood the requirements of the users. And interestingly, their stories quite fascinating that कि इनका सॉफ्टवेयर जो था ना वो सेल नहीं हो रहा था बिगिनिंग में, because people didn't know where to purchase, how to purchase, और लोग उसके क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे थे. और क्रैक वर्जन यूज करते करते लोगों को इतना पसंद आया कि मूवी प्रोडक्शन कंपनीज, डिजिटल कंपनीज, इन्होंने इनको कॉन्टैक्ट किया एंड दे बिकेम देयर फर्स्ट कस्टमर और दे पार्टनर्ड विद देम.
So it was the user who used cracked version, not the paid version in the beginning. Because of them, this software became popular. I was talking about 2 million users की जो community थी, ये इसी से बनी. And interestingly, if you have seen this movie, The Tintin and Adventures, I don't know exact name, it came in around 2011-12. So वो मूवी थी जिसमें मार्वलेट डिजाइनर में बनी हुई क्लोथिंग जो थी वो यूज की गई बहुत अच्छे से. हालांकि बहुत सारी चीजें हम मार्वलस डिजाइनर और CLO3D में यूज कर सकते हैं. These are, we are talking about CLO3D, तो मार्वलस डिजाइनर कहाँ से आ जाता है? It started with marvelous designer. They started it with marvelous designer, and later on they launched a parallel software, CLO3D. These are not competitors. These are just for different usage. Means marvelous designer is now catering to, if you want to create assets in game or cosplay, that's how it works. Marvelous designer में वो features आ रहा है. Or CLO3D is specifically catering to the need of 3D garment industry. It creates true to life garment. Virtually आप उन garments के साथ बहुत सारे experiments करके देख सकते हैं. And interestingly, इस स्टोरी को अगर हम बात करें कि किस तरह से चलते चलते यहाँ तक पहुंची, तो यूजर्स से इन्होंने सबसे ज्यादा फीडबैक लिया कि अपैरल इंडस्ट्री में पैटर्न मेकर्स को, डिजाइनर्स को, जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं और किस तरह से उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है. That's what CLO is based on. Let's talk about it. होता क्या है, एक डिजाइनर के पास एक आइडिया आता है, they usually sketch it and then they pass it on to pattern master. पैटर्न मास्टर उसमें थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन डिजाइनर से चाहता है कि किस तरह का फैब्रिक होगा. इसमें मर्चेंडाइजर का रोल भी आ जाता है कि अरेंज या सोर्स उसको करना होता है, पर खैर डेवलपमेंट में डिजाइनर्स ही करते हैं. किस तरह का फैब्रिक इसमें यूज होगा, कौन सी ट्रिम्स लगेंगी, सिलुएट क्या रिक्वायर्ड होगी. और उस केस में होता है कि कई बार फिजिबिलिटी में, कई बार कम्युनिकेशन गैप की वजह से, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, या दोनों लोग अपने अपने काम में ज्यादा बिजी हैं, इस वजह से होता है कुछ कंफ्यूजन होते हैं और वो गारमेंट, वो प्रोटोटाइप इतना अच्छा निकल के नहीं आता. चलो एक बार किया, दो बार किया, उसके बाद हम उसी सेम पीस पर दोबारा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते, उसको बेस्ट बनाने की कोशिश नहीं करते. वी गो ऑन टू नेक्स्ट डिजाइन. यूजुअली दैट हैपेंस इन इंडस्ट्री. While I was working, it happened कि PD में यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो डिजाइनर्स थे वो 10-10, 12-12, 15-15 सैंपल्स एक एक दिन के प्रोग्राम्स डालते थे. 3 से 4 दिन लग जाते थे उनको बनने में, और उसके बाद उनको अपने स्केच से या अपने आइडिया से वो प्रोडक्ट कंपेयर करने को मिलता था. व्हाट इफ आप वो चीज साथ के साथ कर पाओ? दैट्स हाउ इट वर्क्स. हाँ, it's because of a rising of technology. जैसे हमारे पास अभी हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि we have got graphic card in it, we have got powerful CPUs in it. हमारे पास RAM की कैपेसिटी, I remember when I first used a computer, तो मेरे पास 128 MB RAM होती थी. And now we are using it like 16 GB of RAM. So you can understand कि how technology has changed, and because of that technology change, जो ray tracing है या जो true to 3D या true to life garments की look जो आती है, that is coming because of these things only. और इन चीजों के चलते जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली कोविड टाइम में, when people were at home, they couldn't go anywhere, but they wanted to show their garments or ideas, specifically designers. Production was closed down. You know what designers were still working on? They were showcasing their designs, and in some parts with some protocols and some I would say कि कुछ precautions लेते हुए कुछ जगह फैक्ट्रीज चल रही थी, but PPE किट ही बन रहा था उसमें. तो टिपिकली इट केम इनटू न्यूज इन दैट एरा. हालांकि इससे पहले भी 3D अपैरल के सॉफ्टवेयर्स एग्जिस्ट करते थे और आज भी करते हैं, पैरेलली रन कर रहे हैं कि हम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं. बट जो सिमुलेशन की टेक्नोलॉजी थी, फैब्रिक सिमुलेशन थी, उसका क्रेडिट CLO हो जाता है.
हालांकि आजकल और भी सॉफ्टवेयर आ गए, जैसे ब्राउजवेयर है, लोटा है, ब्राउजवेयर का वी स्टिचर एंड लोटा, दे आर आल्सो क्वाइट इंट्यूटिव, बट दिस स्टार्टेड विद दिस। एंड आज के टाइम में हम जो जो चीजें क्लो 3D में कर सकते हैं, इट्स नॉट ओनली दैट वी कैन वर्चुअली चेक द सैंपल और फिट, एक्चुअल में हम उसे पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, टेक पैक्स निकाल सकते हैं। चलिए जरा समझते हैं कि हाउ द वर्किंग ऑफ क्लो 3D गोज ऑन, क्योंकि हम अगर सिर्फ बात करेंगे क्लो 3D में गारमेंट बन जाता है, मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया, ओके दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट until unless we get to see a little bit more of it, कि कैसे होता क्या है उसमें, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए भी क्या होता है, तभी हम आगे समझ पाते हैं। सो व्हाट आई हैव यूज्ड, कि आई विल मूव ऑन विद दिस पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, बट फॉर योर कन्वीनियंस और योर अंडरस्टैंडिंग मैंने वॉइसलेस और साउंडलेस वीडियोस जो है वो बैकग्राउंड में डाले। सो प्लीज look carefully on those videos when I'm talking about that topic। तो मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड गारमेंट्स या वीडियोस जो है आप उस पीछे उसमें देख पाएंगे, राइट। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इंटरेस्टिंगली कैसे कहां तक हम इससे जा सकते हैं, राइट। आइए, so CLO3D helps us to create true to life garments। Why I'm saying true to life garment, if you can see on the screen, true to life garment means कि जैसे हम इलस्ट्रेटर पे या कोरल ड्रॉ पे या किसी और सॉफ्टवेयर में कोई भी स्केचेस क्रिएट करते थे, we could animate those sketches in real life movement manners। जैसे हमारी रियल लाइफ की मूवमेंट्स होती है उस मैनर्स में नहीं कर सकते थे, एंड उसका फैब्रिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सिलुएट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फोल्ड्स कहाँ आ रहे हैं, कहाँ पर फोल्ड्स नहीं आ रहे हैं, फिटिंग प्रॉब्लम्स कहीं हो रही हैं, तो वो हमें पता लगता था जब हम एक्चुअल गारमेंट क्रिएट कर लेते थे। एंड यूजली इट वाज इवन सेंट फॉर वियर एंड टियर टेस्ट एज, कि रेगुलर लाइफ में आप उसको जब पहनते हैं तो कहाँ कोई काम कर सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन दैट मैनर। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट ट्रू टू लाइफ गारमेंट। लेकिन करते कैसे हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट, बट जस्ट सी दैट इन दिस एनिमेशन द गारमेंट इज क्रिएटेड इन CLO3D, और जो क्रिएट किया हो उसमें आपको जो गैदर्स, जो रफल्स, जो फिटिंग जो दिख रही है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट चेंज आप देख पा रहे हो कि उसमें चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं। So how we can create true to life garments, how it's done, let's understand it। अगर हमें forget about true to life garments, let's talk about garments अगर बनाने हैं तो process क्या होगा। First we have to design it, a designer is going to design it। design करने के बाद वो garment जो है, that means कि उसका sketch सबसे पहले बनेगा, या प्रेजेंट करने के लिए, आइडिया शेयर करने के लिए कुछ ना कुछ तो शेयर करना पड़ेगा, स्केच शेयर करना पड़ेगा, या बाय मींस ऑफ वर्ड्स द पर्सन विल शेयर विद पैटर्न मास्टर। देन उसका एक पैटर्न क्रिएट होगा, पैटर्न क्रिएट होने के बाद फैब्रिक कटिंग होगी, फैब्रिक कौन सा लेना है, कौन सा फैब्रिक अच्छा लगेगा, ये हम गारमेंट बनने से पहले ही डिसाइड करते हैं। सो इट्स मियर कहना चाहिए तुक्का लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, या ओवर द इयर्स जो एक्सपीरियंस हो गया है उस एक्सपीरियंस की वजह से हम कौन सा फैब्रिक उसमें यूज करना चाहिए हम वो कर पाते, राइट। सो दैट इज हाउ इट गोज ऑन guys। Let me tell you, if you want to ask any questions during the session as well, you can ask it in chat box, but it would be more easily done thing if you ask the questions in the last in the last of presentation, so that I can answer it with my full concentration, right। तो बात करते हैं कि गारमेंट्स जो हम बना रहे हैं वो गारमेंट बनने के लिए फैब्रिक हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, एंड वी आर सिलेक्टिंग इट ऑन बेस ऑफ एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। अब एक्सपीरियंस के बेस पे क्या, कई बार मतलब 90% टाइम इट्स गोना गो अहेड विद अ बेटर मैनर, कि बहुत अच्छे से फिट आएगा, सारा ड्रेप बहुत अच्छा आएगा, पर कुछ गारमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए फैब्रिक ऑप्शंस जो हमने चूज किए वो अच्छे हैं, और जो हमने नहीं चूज किए कई बार हम जब उन्हें ट्राई करते हैं इट इज मच बेटर देन दैट। यस, दैट्स हाउ यू गेन एक्सपीरियंस। तो उसके बाद आपने फैब्रिक चूज किया, उसकी कटिंग होती है, देन इट इज स्टिच्ड।
अब स्टिचिंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, स्टिचिंग करते हुए फिटिंग किस तरह से आ रही है, उसके बाद वंस इट स्टिच्ड हम या तो लाइव मॉडल पे या मैनेक्विन पे इसको वेयर करवा के देखते हैं कि जिस मेजरमेंट्स के हिसाब से जिस साइज में हमें चाहिए था गारमेंट वैसा क्रिएट हुआ है या नहीं क्रिएट हुआ, और अगर गारमेंट वैसा क्रिएट हुआ है तो उसका लुक वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है ड्रेप में जैसा आना चाहिए। तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि जो लुक है वो भी तो वैसा आना चाहिए ना जिस चीज के लिए हमने स्टार्ट किया था इसे। Now, if that garment requires print, if that garment requires embroidery or any top stitching kind of element, तो जब हम उसको बनाने वाले फैब्रिक कटिंग हमने की है यूजुअली उसी स्टेज पे हम प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी के लिए उसको भेज देते हैं। अब इट्स नॉट गोना बी इजी क्योंकि प्रिंट के लिए आपको फिर प्रिंट डिजाइन जो है वो क्रिएट करना पड़ता है, उससे फिर स्क्रीन डेवलप होती है या डिजिटल प्रिंटिंग मशीन है तो उसमें वो फैब्रिक पहले प्रिंट होके आएगा, देन यू गोना स्टिच इट, या एम्ब्रॉयडरी होके आएगा। यू माइट हैव सीन बिगर एम्ब्रॉयडरी मशीन्स जिसमें काफी सारे हेड्स होते हैं, 20 हेड मशीन विद 9 नीडल्स और सीक्वेंस एज वेल। तो उन मशीन्स पे मतलब छोटी मशीन्स पे अवेलेबल होती है, एम्ब्रॉयडरी होकर या मैनुअल एम्ब्रॉयडरी होकर जब वो फैब्रिक पीस आता है उसी के बाद उसे स्टिच किया जा सकता है। या फिर कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो गारमेंट बनने के बाद प्रिंट होते हैं ताकि वो इस तरह से आ सके कि जो स्टिच्ड पीसेस हैं उन पे साथ दिख सके, राइट। तो दीज आर रियल गारमेंट्स और इसीलिए हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी 3D सॉफ्टवेयर में कि ऐसी चीजें करें कैसे, राइट। दैट्स व्हाट वी गोना लर्न कि कैसे किया जाता है उसमें। और इंटरेस्टिंगली जैसे ही प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी या टॉप स्टिचिंग आपने दे दी उसके बाद हाउ दैट गारमेंट इज गोना लुक ऑन ए मॉडल, तो फोटोशूट की लोकेशंस या रैंप वॉक हमें चाहिए होता है फैशन शो, बट it never happens for all the garments that we create in factory। या जो डिजाइनर भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं सभी गारमेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। यूजुअली गारमेंट्स आर हैंग्ड इन शोरूम और बायर आते हैं, बायर रिव्यू दोज प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स को रिव्यू करने के बाद इनिशियली कुछ सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है एंड देन उनको फिट करके देखा जाता है मॉडल्स पे, और अगर वो थोड़ा अच्छे लगते हैं या उसकी सेल्स के चांसेस होते हैं तो उसके लिए आगे प्रोसीड किया जाता है। That's how this process goes on. But what if आप उन ट्रू टू लाइफ गारमेंट्स को पहले ही विजुलाइज कर पाए, ऑन योर मॉडल्स, रैम्प वॉक में या फोटोशूट पे, वो फोटोशूट जहां पर आप उसको मतलब अगर इट्स स्पोर्ट्स वेयर तो स्पोर्ट्स एरिना का बैकग्राउंड यूज करें कि वहां पर किसी फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल के लिए जो कॉस्ट्यूम है वो बना हुआ है और वो डिस्प्ले, राइट। उस शूट में उन सारी चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपेंस, बट विद दीज 3D सॉफ्टवेयर्स इट्स प्रीटी मच इजी, राइट। चलिए जरा समझते हैं व्हाट एल्स कैन बी डन। सो फर्स्ट थिंग इज CLO3D में जो डिजाइन एंड प्रोटोटाइप किया जाता है, दैट मींस यू कैन स्केच इट एंड देन विद दैट स्केच यू कैन डायरेक्टली आप उस स्केच से ही उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैटर्न्स में, डिजाइन्स में। दीज स्केचेस कैन बी एक्चुअली इनको इमेज की तरह क्लिक करके यू कैन ब्रिंग इट टू CLO3D वर्कस्पेस एज वेल, और आप वहां से भी ट्रेस अगर करना चाहें अपने स्केचेस को, अपने डिजाइन्स को, तो आप वो कर सकते हैं और आप खुद विजुलाइज कर सकते हैं जो स्केच आपने किया था वो एक्चुअल मॉडल पे किस तरह के फैब्रिक्स, कलर्स, पैटर्न्स के साथ अच्छा लगेगा। एंड usually it helps in prototyping, you know, design and prototype goes all together। ऐसा नहीं है कि हम डिजाइन करते हैं और फिर ब्लैंकेट डिजाइन रहता है कि नहीं अब दोबारा तो उसमें चेंजेस होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। we do a lot of changes at design stage itself, but what if कि actual garment बनने से पहले ही हम वो चेंजेस कर लें। yes, अगर हमारा सैम्पलिंग 10% भी कॉस्ट करता है, 10 to 15% भी कॉस्ट करता है तो हम कॉस्ट तो बचा ही रहे हैं, बट सैम्पलिंग में जो टाइम लग रहा है, जो रिसोर्स यूज हो रहे हैं, उन रिसोर्सेस को भी हम बचा रहे हैं। तो बेसिकली यूजिंग CLO3D इज अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस एज वेल। सो इट्स अ स्टेप्स टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी बिकॉज वी आर नॉट वेस्टिंग दैट मटेरियल जो एक्चुअल सैंपल्स बनाने में यूज हो रहा था, या ये कहना चाहिए रफ सैंपल्स बनाने में यूज हो रहा था। फाइनल सैंपल तो हम बना ही सकते हैं ना,
सो आप डिजाइन करते हैं, आप अपना प्लेसमेंट ऑफ प्रिंट ट्राई करना चाहते हैं, आप अपना फैब्रिक या सिलुएट्स जिस तरह से चाहते हैं, उन सिलुएट्स को स्टाइलिंग जिस तरह से देना चाहते हैं, यू कैन डू दैट with this software. Then comes the next thing. Okay, I think I have come a lot farther in here. Next thing is patterns, right guys? So पैटर्न ड्राफ्टिंग अगर आपको नहीं आती है और आप चाहो कि आई डोंट नो हाउ टू ड्राफ्ट दीज पैटर्न्स, तो मैं CLO3D पे कैसे वर्कआउट कर सकता हूँ? मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स डू स्केच, क्रिएट सिलुएट्स, लेकिन पैटर्न के लिए पैटर्न मास्टर्स ही काम करते हैं. ओके, नाउ हियर कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ CLO3D. अगर आपको कोई भी 2D ग्राफिक सॉफ्टवेयर बनाना आता है, सॉरी 2D ग्राफिक सॉफ्टवेयर में काम करना आता है, बनाना नहीं, उसमें गारमेंट बनाना या कोई भी शेप बनानी आपको आती है, तो CLO3D helps you create that shape. You know, इसमें भी आपकी 2D ड्राइंग के या आई वुड से कि पेंसिल ड्राइंग्स कहना चाहिए, या शेप्स या बी स्प्लाइन्स, बीजियर कर्व्स, पेन टूल अवेलेबल है, जिससे आप रेक्टेंगल से या शेप मैनिपुलेशन से अगर आप कोई पैटर्न बनाना चाहते हैं, आप वो पैटर्न उसमें बना सकते हैं. यू नीड नॉट टू फॉलो रेगुलर रूल्स ऑफ पैटर्न मेकिंग फॉर दिस. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलर रूल्स फॉलो करके पैटर्न मेकिंग नहीं कर सकते. बिल्कुल कर सकते हैं. आप स्लैश एंड स्प्रेड करना चाहते हैं, आप डार्ट ऐड करना चाहते हैं, आप गेदर्स ऐड करना चाह रहे हैं, यू कैन डू एनी एंड एवरीथिंग जो आप पैटर्न मेकिंग में शेयरिंग का रेशियो देना चाह रहे हो, या आपको आर्म होल पर कितना या शोल्डर स्लोप किस तरह से कैलकुलेट करके डालना है, यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट एज. It's a precise software. It helps you accurately, you know, it let you accurately visualize your fabric, your fit, and also the silhouette of the imagination that you have done. मतलब आपने जो imagination किया उससे आपको पैटर्न बनाना है. आप रेगुलर पैटर्न मेकर नहीं है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है शेप्स बनाने का, आप बना सकते हैं. आप रेगुलर पैटर्न मेकर हैं तो आपके लिए भी उसमें टूल्स अवेलेबल है. मतलब इट्स सर्विंग बोथ द यूजर्स. सो इफ यू डू नॉट नो कि किस तरह से आप वर्कआउट करोगे, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, सो यू कैन जस्ट ट्राई दिस सॉफ्टवेयर एंड यू विल रियलाइज कि इट्स सिंपल येट क्वाइट इंट्यूटिव एंड पावरफुल. और इसको यूज करने में आपको बहुत मजा आने लगेगा, बिकॉज इट्स द रैपिड प्रोटोटाइपिंग दैट मैटर्स. आप जल्दी वो काम कर पा रहे होंगे जिसकी वजह से आपको ये मजा आ रहा होगा कि आप कोई डिजाइन विजुअलाइज करना चाहते हैं एंड आप इमीडिएटली वो कर पा रहे हैं. मतलब दैट मींस ऑब्वियसली इट्स गोना टेक at least half an hour to create some realistic garments जो आप करना चाहते हैं, but then that's how it works. जो गारमेंट, जो डिजाइन आपको 3 दिन 4 दिन लगने वाले थे स्टिचिंग के साथ, और कितने सारे लोग इन्वॉल्व होने वाले थे, और अगर आप खुद अकेले करने वाले हो तो आपका कितना टाइम लगने वाला था उस चीज को डिजाइन करने में और एक्चुअल प्रोडक्ट को विजुअलाइज करने में. दैट इज गोना बी द थिंग दैट यू कैन विजुअलाइज इन हियर, और वो भी उसके 1/10 या 1/15 टाइम में. द बेस्ट पार्ट इज, अगर आपको पैटर्न मेकिंग आती है इट्स गुड फॉर यू, अगर नहीं आती है तब भी आप इसमें गारमेंट्स बनाकर विजुअलाइज कर सकते हैं. हाँ, वो प्रोडक्शन फ्रेंडली नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको किसी पैटर्न मेकर की जरूरत पड़ेगी या उस गारमेंट को रिव्यू करवाने की जरूरत पड़ेगी, बट एटलीस्ट यू कैन विजुअलाइज योर डिजाइन विद द हेल्प ऑफ दैट पैटर्न. So that's the intuitiveness. Let's move on, understand what else it can do for us. और ये हमारे लिए क्या कर सकता है जरा समझते हैं. Okay, now the next part is sewing and alteration. You know what happens? The next phase, garment में cutting होगी, cutting होने के बाद stitching तो होगा ना. अब स्टिचिंग कौन सा पार्ट कहाँ जोड़ना है और स्टिच करना है, और आपकी स्टिचिंग अच्छी है या नहीं, आपके पास टेलर्स अवेलेबल है या नहीं, और आपकी सैम्पलिंग लाइन में टेलर्स के पास टाइम है या नहीं, उसके बेसिस पे काफी सारे सैंपल्स लेट होते हैं, यू नो. लेकिन क्या होता है CLO3D में, आप पैटर्न्स को फैब्रिक पीसेस में कन्वर्ट करके सीधा कटआउट्स यूज करके, दैट मीन्स कि ये कटिंग, ये जो पैटर्न्स दिख रहे हैं इनको पेपर रख के फैब्रिक काटने की जरूरत नहीं है. इन पैटर्न्स को ही आप यूज कर सकते हैं
फैब्रिक प्रॉपर्टीज, और वो पेपर पैटर्न जब है और वर्सेस जैसे ही हम उसको सिमुलेट करने लगते हैं तो हम उसमें फैब्रिक की प्रॉपर्टीज एलोकेट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर फैब्रिक एम्यूलेटर है। तो जो भी टेक्सटाइल्स को हम यूज करते हैं उनको टेस्ट करके उनकी बेंडिंग, रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, ये सारे डेटास को डाला जाता है, जिससे उनका ड्रेप बिहेवियर इस सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलता है। तो उस ड्रेप बिहेवियर के सिमुलेशन की वजह से आपका कॉटन जर्सी है या पॉपलिन है या आपका एम्ब्रॉयडर्ड कोई लेस फैब्रिक है, और या फिर आपका वार्प नेटेड कोई फैब्रिक है, राइट, फ्लैट नेटेड कोई फैब्रिक है, और मे बी आपका वोवन फैब्रिक है, डेनिम है, हेवी वेट फैब्रिक है, उसके हिसाब से उन प्रॉपर्टीज को सिमुलेट किया जा सकता है। लेकिन उनको सिमुलेट करने के लिए आपको ऑब्वियसली स्टिचिंग भी तो करनी होगी उसमें, तभी तो, क्योंकि हमारे जो गारमेंट है दीज आर 2D to 3D गारमेंट्स, दैट मीन्स कि 2D पीसेस हम कट करते हैं और फिर 3D वियरेबल गारमेंट्स एक्चुअल में हम बनाते हैं जिनको हम पहन पाते हैं, राइट। तो अब उनको 3D बनाने के लिए हमें शेप्स को आपस में स्टिच करना पड़ता है। नाउ यू कैन डू द स्यूइंग पार्ट इन 3D। आप देख सकते हैं कि स्टिचिंग होने के बाद वो गारमेंट कैसा लग रहा है। अदरवाइज जो आपने स्केच किया था पैटर्न, मास्टर से पैटर्न बन गया, कटिंग हो गई, और कटिंग होने के बाद फिर स्टिच होके फिर पीस आपके जब सामने आता है तब आप उसको पहली बार एक्चुअली विजुअलाइज कर पाते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप पहले ही कर पाते हैं। और अगर कोई लुक में चेंज आपको चाहिए, कहीं आपको उसको थोड़ा सा लंबा करना है या स्टिचिंग को थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा रफल्स देने, यू कैन डू इट एट दिस स्टेज ओनली एंड यू कैन विजुअलाइज दैट प्रोडक्ट, राइट। और अगर बाई चांस रिसीव करने के बाद आपको कुछ में मेजरमेंट के ऑल्टरेशन की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जो मॉडल्स है या शो स्टॉपर है, एवेटार्स, उनका साइज सेट बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको जो ये राइट साइड में इनका 2D पैनल है जहां पर आप देख पा रहे हैं ये बॉडी का स्केच बना हुआ है, और लेफ्ट साइड में एवेटार एक्चुअल मेजरमेंट्स जो बॉडी के आपने लिए उसके हिसाब से आप फैब्रिक ड्रेप करते हैं। तो बेसिकली जो फिटिंग इस गारमेंट की उस पर्सन पे या इस वर्चुअल एवेटार पे आ रही है, वही फिटिंग का पैटर्न उन मेजरमेंट्स के साथ आपको मिल जाता है। सो अगर आपकी सिमुलेशन और फिट इस पर ठीक है और फिट मैप्स में आप चेक कर पा रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में भी वो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत कम है, अनटिल अनलेस आपके फैब्रिक की प्रॉपर्टीज कुछ अलग हो गई है। लेकिन वो सिर्फ ह्यूमन एरर पे डिपेंड करेगा, बिकॉज आपके अगर फैब्रिक में भी प्रोग्रेसिव श्रिंकेज है या आपके फैब्रिक में मतलब वॉश के बाद कुछ एक्सपेंशन आ गया है, तो वो मेजरमेंट्स या वो चीजें आपको सॉफ्टवेयर को बतानी। And if you can provide the right information about the fabric shrinkage and all that, so problem होगी ही नहीं कभी. You'll be getting precise, accurate result in this software. Then comes your fit in simulation. अभी हम बात कर रहे थे सिमुलेशन होता क्या है। सिमुलेशन बेसिकली है कि आपने उस फैब्रिक की प्रॉपर्टीज के हिसाब से बॉडी पर वो जो फैब्रिक ड्रेप किया, ये जो पैटर्न ड्रेप किया, गारमेंट बन गया, तो वो उन्हीं फैब्रिक प्रॉपर्टीज के, यानी कि उसकी रिजिडिटी कितनी है, उसका ड्रेप क्या है, वो स्टिच होने के बाद पीस जो है उसका फॉल कहाँ आ रहा है, वो सारी प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हो। टियर स्ट्रेंथ क्या है, कहीं फट तो नहीं जाएगा, या बॉडी मेजरमेंट्स की वजह से ज्यादा स्ट्रेच तो नहीं हो रहा है फैब्रिक, उसमें होल्स तो नहीं क्रिएट हो रहे हैं, या सीम में कुछ पकड़ तो नहीं आ रहा है क्योंकि छोटा या बड़ा सीम हमने वहां पर लगा दिया। सो ऑल दीज थिंग वी कैन जस्ट चेक इट ऑन लाइव मॉडल, या हमें ये कहना चाहिए वर्चुअल 3D एवेटार पे हम चेक कर पाते हैं। टिपिकली अगर हम किसी मैनिक्विन पे कोई भी प्रोडक्ट चेक करते हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट चेक करने के लिए हमें एवेटार यानी कि मैनिक्विन को परचेज करना पड़ेगा और उस पर हम फिट चेक करेंगे, और उसके बाद भी हम मूवमेंट्स नहीं चेक कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पर एवेटार के पोजेस और मूवमेंट्स हम एनिमेट कर सकते हैं। तो एक्चुअल गारमेंट जो सिमुलेट हुआ है, फिट हुआ है उस 3D एवेटार पे, उसको हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जब उसने हाथ उठाया या द पर्सन इज मूविंग ऑन स्टेज और द पर्सन इज डांसिंग, सो उस गारमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कहां पर वो उठेगा या कहां पर वो रेस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट को, और कहां पर उसके फटने के चांसेस होंगे। ये सारी चीजें हो पाती हैं आपके इस सॉफ्टवेयर। यहां पर
यानी कि फिट इन सिमुलेशन। इंटरेस्टिंग, आई सपोज इट्स गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं कि अब now this thing is very intuitive that it has got a silhouette review all as well. Now this virtual silhouette review करता क्या है आपके लिए? silhouette review बहुत सिंपल सी कहानी है कि आप अपने गारमेंट को आपने फिट कर दिया, सिमुलेट कर दिया, पर्सन के ऊपर ड्रेप कर दिया, नाउ व्हाट डू यू वांट, आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप स्टाइल लाइन से ही चेंजेस डायरेक्टली कर सकते हैं। And that's how it's gonna be कि स्टाइल लाइन से अगर हमने गारमेंट किसी मॉडल के ऊपर ड्रेप कर दिया तो हम क्या करते हैं, फिर पिन अप करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो निकालते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक देना है तो हम मार्किंग करते हैं और फिर से पेस्ट करके ड्रेप करके चेक करते हैं। कोई भी गारमेंट अगर हमने स्टिच कर लिया और वो फिट नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें वो दोबारा बनाना पड़ता है, या अगर हमने किस तरह से उसको कट करके फिट कर भी दिया तो एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए हमें वो पीस दोबारा बना के एक बार फिट करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप बेसिकली स्टाइल लाइंस को चेंज करके मेजरमेंट्स को यहाँ पर 3D एवेटार के ऊपर डायरेक्टली 3D पैनल में ही उसको चेंज करके यू कैन डू इट एंड इट्स क्वाइट इजी इन दैट कैटेगरी, राइट। मूविंग ऑन, आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अब आपको फैब्रिक्स उस पर सिमुलेट करने, बट किस कलर का फैब्रिक, यू नो एक डिजाइनर का बहुत इंपॉर्टेंट एक व्यू पॉइंट होता है कलर्स के ऊपर, ठीक है। अब एक डिजाइनर ने कुछ कलर सिलेक्ट किए हैं और उसी कलर के फैब्रिक में वो गारमेंट बन रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि वो गारमेंट उस हिसाब से नहीं बन पा रहा है या वो कलर में सूटेबल नहीं लग रहे, सो व्हाट विल हैपन, आप यहाँ पर वो फैब्रिक, यानी आपको अगर वेट चेंज करना है उस फैब्रिक का, यू आर ट्राइंग इट विद पॉपलिन बट यू वांट टू ट्राई इट विद वॉयल, या आप जर्सी में ट्राई कर रहे थे, यू वांट टू ट्राई इट विद पिके, सो यू कैन डू दैट एज, राइट। आप उसके साथ भी वो ट्राई कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक स्ट्रक्चर्स के साथ आप ट्राई कर पाएंगे, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर अवेलेबल है। बट नॉट ओनली दिस, यू कैन ट्राई डिफरेंट कलर्स, चेक्स, प्लेट्स, इवन डिफरेंट टेक्सचर्स एंड स्ट्रक्चर एज वेल जो एग्जिस्ट करते हैं, और उसके लिए फैब्रिक्स, काफी फैब्रिक्स CLO3D में अवेलेबल भी है, बट यू कैन गेट इट फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज एज वेल, जैसे कि सबस्टेंस जो सॉफ्टवेयर है Adobe का, नाउ इट्स क्रिएटिंग यू नो इंटरेस्टिंग फैब्रिक्स जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो और ड्रेप करके देख सकते हो। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि उन फैब्रिक से कलर, स्ट्रक्चर विजुलाइज किया आपने, प्रॉपर्टीज यानी फॉल, ड्रेप कैसा होगा, उस अकॉर्डिंगली आपने फैब्रिक को चेंज किया। That's what that can be done on this. You know why I'm getting into the detail कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर सीखना भी चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं उसमें, तो सिर्फ ये नहीं समझना कि हाँ भाई गारमेंट क्रिएशन का एक सॉफ्टवेयर है, फैशन का सॉफ्टवेयर नहीं, इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प यू क्रिएट और कन्वर्ट योर इमेजिनेशन इनटू कम्युनिकेबल डिजाइन्स। कम्युनिकेबल का मतलब मेरा ये है कि आप जो बोल के बता रहे हो सामने वाले को समझ नहीं आ सकता है, ठीक है, या कुछ पार्ट उसका समझ आता है, स्केच करके बताते तो उसको एक रफ सा आइडिया होता है, बट व्हाट इफ यू क्रिएट अ 3D गारमेंट, तो विजुलाइज कर पाता है कि व्हाट यू आर थिंकिंग, एंड दैट मेक्स द कम्युनिकेशन इजियर, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाता है। और जब उसमें आप एक्चुअल फैब्रिक्स यूज कर पाते हैं, क्योंकि मुझे पता है इन द फैक्ट्री व्हेन यू गेट विद योर फर्स्ट फिट सैंपल तो ये कहा जाता है कि सेम टाइप का ले लो, सेम कलर अवेलेबल नहीं होता है यूजुअली, और जब पीडी में बात करते हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तो हम जो फैब्रिक्स अवेलेबल होते हैं या जो सीजन के लिए फैब्रिक्स बायर ने रेकमेंड किए होते हैं, हम उन्हीं फैब्रिक्स पे वर्कआउट करते हैं, सो दैट लिमिट्स अवर क्रिएटिविटी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर वी कैन यूज एनी एंड एवरी काइंड ऑफ फैब्रिक, एक वेलवेट यूज करना है, सिल्क यूज करना है, व्हाटएवर यू वांट टू यूज यू कैन गो अहेड विद दैट, राइट। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट प्रिंट एंड एम्ब्रॉयडरी। आई वाज टेलिंग यू कि कोई भी कटिंग करने के बाद आपको पहले प्रिंट करना पड़ेगा या एम्ब्रॉयडरी करनी पड़ेगी, अनटिल अनलेस वो आपके सीम्स पे आ रहे हो, कि गारमेंट डाई के, गारमेंट प्रिंट के और गारमेंट एम्ब्रॉयडरी के भी काफी प्रोग्राम होते हैं, बट टू मेक द प्रोडक्शन मोर वायबल उसको पैटर्न पीस यानी कटिंग जो होती है, पीसेस ऑफ पैटर्न रख के जो पीस काटे जाते हैं उसके बाद ही एम्ब्रॉयडरी और प्रिंट यूजली करवा लिया जाता है टू मेक इट प्रोडक्शन फ्रेंडली, राइट।
तो विजुअलाइज करने का तो मतलब ये है कि अगर आपको एक्चुअल में करना है तो फिर एम्ब्रॉयडरी के लिए या प्रिंट के लिए गया तो और 4-5 दिन आपके लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप प्रिंट, डिजाइन, एम्ब्रॉयडरी, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो विद एक्चुअल लुक, और उसका पोजीशनिंग जो होता है गारमेंट पे आपके बॉडी कर्व्स या बॉडी पोस्चर्स के हिसाब से आपको दिख पाता है कि वो किस तरह से विजिबल होगा, किस तरह से वर्केबल। मूविंग ऑन, okay, now this is what I've taken from Intarsia. Most of people जो फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में भी है, उनमें से भी जो निटिंग इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं उनको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। या वीविंग एंड वीवन वोवन फैब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो वोवन स्ट्रक्चर्स के ऊपर हम जब बात करते हैं तो उनको भी ये बात समझ में आएगी कि दिस इज कि निटिंग के टाइम पे हमने जो निट करना है उसके जो टेक्सचर्स हमको देने हैं, इंटार्शिया टेक्सचर्स, वो हम इस पर वर्चुअली ट्राई ऑन करके देख सकते हैं बेसिकली कि किस तरह से अगर हम उसके रिपीट को छोटा कर देते हैं ऑल ओवर पैटर्न में या बड़ा कर देते हैं तो कैसा दिखेगा। इट कैन वर्क ऑन स्वेटर, जैकेट्स, आप देख रहे हैं स्वेट शर्ट पे, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि वो डिजाइन जो है टिपिकली कैसी लुक क्रिएट कर रहा होगा अलॉन्ग विद योर लोगो, प्लेसमेंट, प्रिंट और ऑल ओवर पैटर्न एज वेल। सो उस पैटर्न को जब आपने डिफाइन कर लिया उसकी मेजरमेंट आपके पास आ जाती है, क्योंकि आप उसको स्केल तो कर रहे हो अपना इंट्यूटिवली, लेकिन जहां आपको लुक पसंद आ गई यू कैन एक्चुअली चेक द मेजरमेंट कि कितने इंच का है और वो उतना ही इंच का साइज या उतने ही सेंटीमीटर्स का साइज आप उस पर बनाकर सेम फैब्रिक क्रिएट कर पाते हैं। So that's an interesting thing, but obviously जैसे जैसे आप इस सॉफ्टवेयर के साथ वर्किंग करते हैं, you go in depth, you'll get to know more about it. Then comes trims. Trims are an important part, buttons, zipper, belts, accessories. आप कोई भी चीज, कोई भी गारमेंट जो है फास्टनर्स के, इनके बिना इमेजिन नहीं कर सकते। These are not only functional trims now, these are basically decorative as well, functional, aesthetic या decorative trims भी हम बोलते हैं, and we can use it so that हमारा गारमेंट और ज्यादा उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ट्रिम्स फंक्शनल तो रहे ही रहे, कॉम्प्लीमेंट भी करें, जैसे आप जिपर देख रहे हो या बेल्ट लूप देख रहे हो, ऑल वी वांट टू डू। लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्केच इट, उसमें ये माइनर डिटेल्स जो है ना, विजुअलाइज थोड़ा सा जो कम अटेंशन मिल पाता है, राइट। और फिर फ्रंट अलग दिख रहा होता है, बैक अलग दिख रहा होता है, और यूजुअली साइड के लिए हम बनाते नहीं है, बट अगर बनाते भी हैं तो हमें तीनों में वही डिटेलिंग देनी होती है, और चेंजेस करने हो तो हमें बहुत लंबे चौड़े चेंजेस उसमें करने पड़ जाते हैं, यानी कि रिक्रिएट ही करना पड़ जाता है डिजाइन को। दैट्स हाउ इट हैपेंस। बट यहाँ पर CLO3D में आप देख सकते हो ट्रिम्स को किस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हो। देयर आर मेनी 3D trims that are available with CLO3D, but there are many trims जो आप बाहर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, and you can use it because a lot of 3D softwares like Blender, Fusion 360, Rhino, जिसमें ज्वेलरी, एक्सेसरीज क्रिएट किए जाते हैं, आप उनको भी इंपोर्ट करके इसमें यूज कर सकते हैं, एंड it gives you upper edge कि आपको इस तरह की चीजें चाहिए। And now the companies are like YKK is getting all its product 3D मॉडल, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं जिपर, उनको वो 3D मॉडल करवा के CLO3D और ब्राउजवेयर में उसमें लाइब्रेरीज अवेलेबल है। वो इसलिए ताकि वो एग्जैक्ट एक्चुअल जो जिपर है, जो साइज है, उसकी विड्थ, गॉज, वो यूज किया जा सके, जो उसका पुलर है, स्लाइडर है, जिस तरह से अवेलेबल है, वो सारी चीजें यूज करके आपके गारमेंट पे डायरेक्टली उसको अप्लाई किया जा सके, ऐड किया जा सके, ताकि आप उसकी विजुअल लुक वहीं पर चेक कर पाए। सो अगेन इट्स गेटिंग, we are talking about next gen technologies, so this makes your work easier, creative, and better. Then comes your makeup part. Now interestingly, not only your garment, but your avatar or your model. The basic makeup can be done with the help of CLO3D, but if you want to go for advanced one, Photoshop can help you with that as well. Substance can help you with that as well. But you want to change the skin tone of your model, it's pretty easy. Sometimes it happens that we want to try it on models with
different skin tones, like if it is selling in India or if it is selling in US and Europe. So I need to check that garment, how it's going to look on that skin tone. That is the creative, freedom that you get here. And then you can also go and manage eyelashes, eyebrows, or maybe if you want to work on, the face and application of concealers, it has got to that level कि आप hair change कर सकते हैं, shoes change कर सकते हैं. That's a different thing. But then skin color as well, lipstick color as well. These are the things, intuitive things, and obviously with new version, because now the running updated version of CLO is CLO 7.0, right? So CLO 7.0 has come up with these kind of things, and in near future, when it's going to work out like CLO 8.0 or 9.0, it might have advanced features available for that as well. So I think you can understand what the level of creativity has become for this. And जो jobs जो designers से expect किया जाता था like 2 years 3 years back, after COVID these things have changed quite drastically. और शायद next 10 years में आज जिन jobs के लिए हम study कर रहे हैं या जो jobs हम कर रहे हैं वो exist भी नहीं करेंगे. I'm not saying all of it, but perhaps there's a chance कि वो काफी modify हो चुकी हैं because of use of e-commerce, because of use of these softwares and technology. So if we skip that part कि हम सोचते नहीं हमें जितना आता है उतना बहुत है, so we are responsible for our stagnant growth. Moving forward, okay, you can create Techpacks as well. You know what? That's an interesting thing. Because अभी क्या होता था कि आप गारमेंट बनाते हैं और गारमेंट बनाने के बाद what happens कि आपको फैब्रिक्स जो यूज करने थे उसका एक बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, राइट? जो आपने जिपर्स यूज की, एक्सेसरीज यूज की, जिस कलर का फैब्रिक की जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसका बिल ऑफ मटेरियल बनाते हो, और स्केचेस आप अलग बनाते थे, एक्चुअल फोटोज आप अलग लेते थे, उन सबको कंपाइल करके टेक पैक बनाया जाता था. तो एक एडिशनल वर्क डिजाइनर के लिए या एक कंपाइलर आपको हायर करना जो इन सारी चीजों को कंपाइल करके बेसिकली एक टेक पैक वर्जन में कंबाइन करके आगे कम्युनिकेशन के लिए भेज सके. लेकिन व्हाट हैपेंस इन हियर इज CLO 3D में क्या इंटरेस्टिंग चीज हुई अभी कि आपने अपना गारमेंट फिट किया, पैटर्न्स आप डायरेक्टली रियल स्केल पैटर्न्स, रियल साइज पैटर्न डायरेक्टली प्रिंट दे सकते हैं, प्लस पीडीएफ में सेंड कर सकते हैं. लेकिन पैटर्न, ट्रिम डिटेल्स और स्टिच डिटेल्स, एक्सेसरी डिटेल्स, पूरा गारमेंट में जो टेक्निकल पैकेज, टेक्निकल डिटेल्स आने वाली है वो सारी CLO अपने आप कंपाइल करके जो आपने उसमें यूज की है आपको टेकपैक क्रिएट करके देता है. एंड यू कैन डायरेक्टली सेंड दैट टेकपैक टू द फैक्ट्री, जो वहां पर उनको पैटर्न्स बने बनाए मिल रहे हैं, मेजरमेंट्स मिल रही हैं फिटिंग के लिए, एंड दे कैन यूटिलाइज इट टू डायरेक्टली क्रिएट योर गारमेंट और प्रोड्यूस योर गारमेंट विद एन एफिशिएंसी. ऑब्वियसली इवन इन फैक्ट कुछ डिजाइन फर्म्स हैं जो बिकॉज दे आर यूजिंग CLO 3D नाउ, वो 7 days में डिजाइन टू प्रोडक्शन का काम भी कर पा रहे हैं. Now this seems almost impossible, but that's true. And there are many of the clients with CLO 3D that are doing that. Let's come back to another thing. It's more important for a designer ki how your garment is going to look on, Rampwalk, or maybe if we go to a different location for a photo shoot, because not every garment is suitable for every occasion or every location. So we try to present it in the best possible location and situation. And for that, it becomes an expensive process. But with the help of CLO 3D, we can do it without spending anything else except time. Yes, it's going to take a little bit of your time, but the environment, the scenes that you can create, and the places that you can use, it's amazing, right? Now, let's see how it's going to look like in future. So
What's the future scope and significance? Interestingly, augmented reality and virtual reality has become part of our life. And in coming days, you would be able to, because these garments that are created in CLO3D, you would be able to wear it just in form of augmented reality. You'll be able to check the fit, you'll be able to check the size, you'll be able to correct that garment without actually wearing it. And then you can purchase it. And as much as we know, as the metaverse is growing, so digital garments are also selling, like Nike, Adidas, they're also selling digital garments, digital footwear, and people are using it for their avatars. But these are actually producible as well. So interestingly, आप अपने लिए customize करवा के भी, क्योंकि if you want to virtually try it on with your VRs, और आप जो अपना phones हैं उनमें AR augmented reality को use करके you'll be able to check it, order it, और उसमें size change करके या color change करके आप अपने लिए orders place भी कर पाएंगे. So in coming years, the future of e-commerce is going to be very interesting and intuitive as well. And if you want to be part of it, you would definitely understand how important this software is for that, right? Then let's talk about why we organized this workshop. So this was a free workshop to know about how this CLO3D works, right? Now, a lot of you know more than, maybe you already have known more than what I have taught in this or what I have shown in this presentation. But this was an honest try to make you workable, or I would say employable, in next coming 5 years also. मतलब आप अगर चाहते हैं कि हम अपनी जॉब्स को अपने पास रखें, एम्प्लॉयबल बने रहे, तो हमें अपना टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के लिए या अपग्रेडेशन के लिए भी वर्कआउट करना पड़ता है. एंड दिस इज हाई टाइम दैट वी वर्क विद दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इफ वी आर पार्ट ऑफ फैशन डिजाइन इंडस्ट्री, और इफ वी हैव बीन अ हॉबिस्ट, या मुझे शौक है गारमेंट्स को अपने लिए बनाने का, ड्रेप करके चेक करने का, एंड आई वांट टू फॉलो दैट पैशन. सो इट्स द इजीएस्ट वे टू फॉलो दैट पैशन एज वेल, because you can create garment, you can showcase it, you can share it on social media, and if people like it, you might create it into a brand and make an identity for yourself as well. But the best part is, if we skip it, आज नहीं तो कल हमें उसे करना पड़ेगा. And I'm not saying आप कहीं से भी इसको कर सकते, you can learn it on their website with the tutorials or maybe texts. I don't know how you want to learn it, but we are organizing a 1-week workshop. Obviously, that's paid, and usually we do charge approximately 3,000 rupees for that 1-week workshop, and it's a beginner level workshop. I'm not sure कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई वो एक वीक में, actually I'm sure कि नहीं हो पाए, but yes, it will be a start. You learn how to create basic things, और scratch से start करेंगे तो you'll get to learn a lot more. So I'm going to show, if you want to go on that, you want to join that course, I'm going to share the screen here. Okay, so you can go to our website, that is lwrnstudio.com, and you can go to courses directly, and in courses, in design itself, you'll find this. You don't go here, CLO3D Live Masterclass. This is a 2-month course, but this is a 1-week workshop, right? And you can go here. It's a 1-week workshop. जिसमें जो classes होंगी, live classes होंगी, that will be recorded, and you will be having access to those classes for next 60 days. Even if I give lifetime access, what happens कि access तो है, तो हम करते नहीं. तो इसीलिए I have given a validity period of 60 days की कम से कम 1 week की classes जो है वो तो आप 60 days में review कर लें. And what we are going to cover in this, इसमें आपके 5 module होंगे. Every day 1 hour for your class and 15 minutes for doubt resolution session. The first module would be feel the environment. In this, we'll understand the environment of CLO3D, how to install that,
इंट्रोडक्शन टू CLO3D, देन उसका यूजर इंटरफेस कैसे काम करता है, उस यूजर इंटरफेस में लाइब्रेरी, हिस्ट्री, मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेटर, इनका क्या यूजेज है, ऑब्जेक्ट ब्राउजर क्या है, प्रॉपर्टी एडिटर, यानी गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटीज एंड डिटेल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। अभी तक तो मैंने आपको विजुअलाइज करवाया कि कैसे वो काम कर रहा है, बट वो करना कैसे है, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दैट कोर्स। देन यूजर इंटरफेस सेटिंग, गिज्मोस कैसे काम करते हैं, पैन कैसे करेंगे आप उसको, जूम कैसे करेंगे, नेविगेट कैसे करेंगे। देन द नेक्स्ट थिंग इज नीड द शो स्टॉपर। एक गारमेंट अगर आपको अच्छे से डिस्प्ले करना है तो आपका मॉडल एप्रोप्रिएट होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग ये मॉडल बेस्ट होना चाहिए, आई वुड से एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सो दैट आपकी गारमेंट को ड्यू कंसिडरेशन मिल सके। एंड इट्स नॉट ओनली अ सॉफ्टवेयर फॉर फीमेल क्लोथ्स ओनली, योर एवेटार कैन बी मेल, फीमेल एंड किड्स एज वेल। You can use mannequin, you can use monochrome look, metallic and mesh, and I'm going to teach you how to do that. उसके बाद उसका बेसिक मेकअप कैसे करना है, मॉडेस्ट लुक पर कैसे जाना है, अगर हम लॉन्जरी या इनर वेयर्स बना रहे हैं तो वो किस तरह से वर्कआउट करना है, पोज कैसे चेंज करना है, डिफरेंट पोज में चेक करना है, हेयर, शूज। अनदर थिंग, जो साइज है, मेजरमेंट है, उसको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कैसे एडिट करना है, बिकॉज स्टैंडर्ड मॉडल साइज तो हर जगह अवेलेबल नहीं होता। हम स्टैंडर्ड साइज इंडिया के लिए अलग फॉलो करते हैं और पर्सनल के लिए तो बहुत ही अलग हमारे मेजरमेंट्स हो जाते हैं। तो वी कैन कॉन्फ़िगर दोस मेजरमेंट्स टू द मेजरमेंट दैट वी वांट, दैट वी विल लर्न इन मॉड्यूल 2। एंड देन मॉड्यूल 3 जिसमें हम डिजाइन फाउंडेशन एक्सप्लोर करेंगे, दैट मींस कि पैटर्न ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, पैटर्न ड्राफ्टिंग के टूल्स क्या है, हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, शेप्स मैनिपुलेट करके कैसे पैटर्न्स बना सकते हैं, देन उनकी स्विंग कैसे करनी है, ऑल्टरेशन कैसे किया जाता है, एंड सिमुलेट कैसे करना है गारमेंट को, एंड देन फाइनली फिट मैप्स पे चेक कैसे करना है कि इज इट फिटिंग और नॉट। एंड देन कम्स मोमेंट ऑफ ट्रुथ, द मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल। इसमें we'll learn how to add accessories, zipper, button, belts, and then we'll also try to understand what is the further scope of learning in this course, whether we should go with it or it was just a hobby course that we tried it, we loved it, we didn't love it, it doesn't matter, you know. And next one is the fifth module that is going to happen on the last day of the week, or fifth day of the week. We'll be learning to make some garments. We'll be practicing. Like, we'll try some top, skirt, we'll try some print, textures, all over print and placement print. That's how we're going to end this workshop, or I would say course. It's a 1 week course. And interestingly, if I say what will be the benefits of this course, you'll be getting a verifiable certificate that will be, you can share it on LinkedIn as well. And mind it, LinkedIn has got very much importance, because the way I showed you, Jaden, who I'm connected with the founder of CLO itself on LinkedIn. No, the person himself is present on LinkedIn, and you can use your certificates that you share on LinkedIn in a professional manner. So it helps you out. There'll be live sessions. All the live sessions will be recorded and available for future accessibility. That means for next 60 days, you'll be learning tips and tricks so that you can do your work faster. You'll be having doubt resolution sessions, and you'll be having free access to design repository. आप जो डिजाइन क्रिएट करेंगे, या जो डिजाइन मैंने क्रिएट किया, या जो मेरे और स्टूडेंट्स ने डिजाइन क्रिएट किया, हम उसको एक रिपोजिटरी में आप सबसे एक्सेस उसकी शेयर करेंगे, ताकि आप उसको यूज कर सके, एडिट कर सके, उनसे सीख सके। सो इस कोर्स में आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बट यू विल बी लर्निंग द 3D सॉफ्टवेयर टू क्रिएट योर ओन डिजाइन्स, राइट? That's what's going to happen in this course. And another important thing that I want to share, because वैसे वो कोर्स हमारा 3,000 रुपीज के लिए अवेलेबल है, बट फॉर दिस वीक, एंड बिकॉज यू हैव कम टू दिस वर्कशॉप एज वेल, दिस वेबिनार, और आई वुड से 1 hour आपने संडे को स्पेंड किया है, सो देयर इज अ 76% ऑफ ऑन दैट, एंड दिस is going to be available for 699 rupees only. And how you're going to do that, I'm just going to share that as well. So मैं जरा शेयर कर देता हूँ यहाँ पर आपके लिए। Okay,
You can directly go to this website. You can add this to cart और आपका यहाँ पर देखिए promo codes can be applied after the checkout. And I'm telling you promo code already. The promo code is learn CLO3D, right? In all caps. ठीक है? आप जाएंगे चेकआउट करेंगे और चेकआउट में आप अपना नाम वगैरह डालेंगे, लॉगिन करना पड़ेगा. अगर आपने यूजुअली आप ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो आपका अकाउंट क्रिएटेड है lwrnstudio.com पे, राइट? आप लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट करेंगे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ. And once you do that, you'll be able to see this price and promo code आपको next page पर डालना है. तो you can just go here and यहाँ पर अपनी डिटेल डालने के बाद अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर विजिबल भी होगा learn CLO3D and you can just apply it. Once you apply it, the course fee would be $699 only, and you can learn this 1 week course, live course in $699 as well. Then you can proceed to payment and you'll be immediately enrolled in the course itself, right? So that's how you're going to do it, guys. And if you want, I can send you the link of the course. Just let me know if you want me to send it. Okay, I'll just send it. I'll just send the link. So I'm sending this link in chat itself to everyone. You can copy from here. And I've already told you कि इसका जो promo code है, that is going to be, if you're not able to find it on checkout page, तो आप यहाँ से कर सकते हैं. This is the promo code, right? And there's no urgency. If you want to learn it, you can always do it. और आज नहीं तो कल कभी भी आप जब भी learn करना चाहें आप कर सकते हैं, जहां से भी करना चाहें. There's no hurry in it, right? But this course would be starting on 27th, यानी कि Tuesday, and it'll end on Saturday, यानी 1st of October. So the timings for this course would be 4 p.m. to 5:15 p.m. So I suppose I have conveyed you all the things. If you have got any doubt, just let me know. Okay, guys. Then I suppose yes, this helps. यानी कि if you want to CLO3D सिर्फ garments नहीं create करता, आप उसके जो patterns हैं, आप सही कह रहे हैं कि पैटर्न्स प्लॉट कैसे किए जाएंगे. आजकल देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटीरियर डिजाइन या फैशन डिजाइन वाले स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते हैं. दे नो कि उनको A1 शीट पे या A0 शीट पे अपने असाइनमेंट्स प्रिंट करने होते हैं. सो यू कैन जस्ट go to any printer because they have got that A0 or A1 size printers. और आप जैसे ही सेव करते हैं पैटर्न्स को आप डायरेक्टली वहां पर जाकर प्रिंट कर सकते हैं and then you can cut it and you can save it. That's how easy it is. So pattern अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है, फैक्ट्री सेटअप नहीं है, तो भी आप उन पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हैं. Got it? Okay, guys. So that's how this session ends it here. आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, I have sent you the link as well as promo code. So whenever you want to join, you can just join in, and we're going to start that course on 27th. And if you're still not able to make up your mind, it's okay. Whenever you feel like, you can just contact us. Thank you. Bye-bye.